عوام کے جائز حق کو عوام تک پہنچانا، تقسیم نہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی دوبارہ سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے کہ آپ کے فیصلے کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں کہ ایک ترمیم پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حق میں بھی کر دی جائے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے تو سندھ کے حالی کسانوں کو بھی آزادی ملے گی، وہ اپنا وزیر اعلیٰ چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں. ابھی جو تقسیم کی بات ہو رہی ہے کہ تقسیم، یہ تقسیم نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے. میرے سندھی بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ان کا اصل دشمن سندھ کا بھڈیرا اور جاگیردار وہ خاندان ہے جو موروثی سیاست کر. یہ انتظامی تقسیم ہے، یہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے، یہ اختیارات کی تقسیم ہے. 45 سالہ جدوجہد رنگ آ رہی ہے. بیٹا تم نے ہمارا گورنر اور گورنرشپ چھین لی نا، ہم سود کے ساتھ تمہارا پورا اقتدار چھین لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 7 سے 8 ثنا ہاشمی کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. آج جب MQM پاکستان کی جانب سے تقریباً 11 جون کے بعد مشترکہ طور پر ان تینوں شخصیات کی یہ پہلی پریس کانفرنس تھی، گو کہ میرے علم میں ہے اور آپ سب کے بھی، کیونکہ 14 اگست کے موقع پر بھی بہرحال ایک باقاعدہ طور پر جو جشن آزادی کا پروگرام تھا اس میں یہ تمام تر شخصیات ایک ہی سٹیج پر موجود تھیں، لیکن میڈیا کے سامنے براہ راست گفتگو کرنے کے لیے جناب محترم مصطفیٰ کمال صاحب، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ بہرحال منظر عام پر آئے. یہ 2 ماہ کی پہلے تک جو کشمکش تھی، آپ کون میں کون اور ہم سب کون والی اور کون چیئرمین اور کون نہیں، وہ شاید وہی ہے، لیکن ایک ایجنڈا جو تینوں لوگ مسلسل اپنی ہر پریس کانفرنس میں کہتے رہے ہیں اور وہ ہے صوبوں کے حوالے سے. اب جب ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سندھ حکومت اپنا ایک ورژن رکھتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ صوبہ سندھ میں تقسیم یا انتظامی یونٹ یا صوبے بنانے کی بات جو ہے یہ بے وقت کی بات ہے. میں غلطی پر نہیں ہوں تو مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، پارلیمانی نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہاں صوبے ہونے چاہیے. میں نے بالکل اوائل میں سنا تھا، آج سے لگ بھگ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، اس وقت بھی میں پروگرام کرتی تھی 25 سال پہلے، کہ بھائی اس وقت جو ہے 10 صوبے بنا دیں. پھر کہا گیا نہیں 10 صوبوں سے بات نہیں چلے گی، ہمیں اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. پھر بڑا زور پکڑا ایک زمانے کے اندر سرائکی صوبے کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ پنجاب کے اندر ہم اپنا چیف منسٹر اگر لے آئے اور اگر ہمارا گورنر ہوا تو ہم سرائکی صوبہ فوری طور پر بنا دیں گے. لیکن آج دن تک 2008 کے الیکشن، 7 کے الیکشنز کی میں بات کر رہی ہوں، اس وقت سے لے کر ابھی تک سرائکی صوبے کے حوالے سے بہرحال ہر الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات ضرور کرتی ہے، بڑی شد و مت کے ساتھ کرتی ہے، لیکن تاحال ابھی وہاں پر صورتحال ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی. وہ کہ اسمبلی نے اپنی ایک ریزولوشن بہرحال پاس کر رکھی ہے. اسی طرح ہزاروال کا جو صوبہ ہے وہ بھی ایک دیرینہ معاملہ ہے. لگ بھگ میرا خیال ہے 20-25 سال ہو گئے اس معاملے کو بھی. ڈیمانڈ موجود ہے لیکن بات نہیں ہو رہی ہے. آج میں نے دیکھا کہ SDPI کے اندر پاکستان کی تمام ہی سیاسی جماعتوں کے اہم ترین رہنما بھی ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ ہو رہا تھا، جس کی بات آج MQM نے کی ہے کہ کیا قباحت ہے کہ ڈائیلاگ شروع کر دیا جائے اور کیا معاملہ اتنا پیچیدہ ہے کہ سندھ میں اگر صوبوں کے انتظامی یونٹس کی بات کی جاتی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں کشت و خون بہہ سکتا ہے، یہاں پر معاملات بگڑ سکتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوگا اور اگر ہو سکتا ہے ایسا تو اس کو روکا کیوں نہیں جا سکتا؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے اور صوبے کے دیگر معاملات پر مجھے جوائن کرنے جا رہی ہیں سعدیہ جاوید صاحبہ، ترجمان ہے سندھ حکومت، اہم شخصیت ہیں اور ظاہر ہے آج انہوں نے تمام پریس کانفرنس کے بعد ایک رد عمل بھی دیا تھا. سعدیہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ثنا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ سعدیہ، بہت بہت شکریہ. سعدیہ، یہ دیکھ کر تو آپ کو بھی اتنا ہی اچھا لگا ہوگا کہ روٹھے ہوئے لوگوں میں جو فریکشنز تھے جس پر بہت سارے لوگ شاید خوش تھے کہ اب تو گئی MQM، یہ سارے پھر اکٹھے ہو گئے. یہ اس بات کی تو خوشی ہے. بہت اچھی بات ہے، اکٹھے ہو گئے. جس دن وہ رات کو جھگڑا ہوا تھا میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ نکلے تھے صوبہ بنانے، اپنی جماعت تو بچا نہیں سکے. تو اللہ کرے ایک رہے MQM. مجھے تو اس بات پہ اچھی بات ہے. اور
कि वो एक रहे। चले ठीक है तो ना, आपके ट्वीट के में ही उन्होंने सोचा कि भाई सूबा तो बनाना ही है तो पहले अपना इत्तेहाद तो बरकरार रखे ना। अच्छा, अब बात चले आगे बढ़ाते हैं। मामला ये सादिया कि ये एक बहुत ही पेचीदा मामला होता है सिंध के सतह तक। क्या वाकईतन इंतजामी यूनिट का लफ्ज सुनकर या सूबों के हवाले से गुफ्तगू जब करती है MQM पाकिस्तान तो सियासत बराए सियासत के एवज आप मुखालफत करते हैं या इसके कुछ और ग्राउंड्स भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास? देखिए, पहली बात तो ये है कि MQM का सफर शुरू हुआ जिनापुर से, फिर जिनापुर से सफर करते 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 अब आ गए सूबा तोड़ने लगा। तो MQM हम सिर्फ सियासत बराए सियासत नहीं करते। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी का उसूली मौकिफ है, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की क़यादत में जब कभी भी इस तरह की आवाज उठाई गई और चाहे आज, ये पीपल्स पार्टी का उसूली मौकिफ है। एक तो पहली बात ये कि यही नहीं आज तक समझ आता MQM चाहती क्या है। कभी पहले मुल्क बनाना था, फिर वफाक के हवाले कभी करना होता है, कभी सूबा बनाना होता है, मतलब आई डोंट नो। अच्छा, ये सब बातें करते हैं या और भी लोग बातें करते हैं, सिर्फ MQM नहीं बात कर रही सूबे बनाने की। कुछ वफाकी वुज़रा जो है वो भी इसमें अपना वो डालते हैं और वो भी इनके साथ हम नवा हैं आजकल कि जी सूबे बनने चाहिए, गवर्नेंस की फेलियर। एक तो पहली बात ये है कि MQM को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पास किया है वो पढ़ना चाहिए। उसमें सूबे बनाने का तरीका मौजूद है जी। आप असेंबली में करारदाद लें, जैसे पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक करारदाद मंजूर कराई थी ना कि सूबा बनना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है ये। तो एक तरीकाकार मौजूद है। आपके लोग भी जीते हुए असेंबली में, आप ले आए, कोशिश करें आप। अच्छा, जितने वफाकी वजीर शोर करते हैं, कल मैं सुन रही थी एक वफाकी वजीर को ही, वो फरमा रहे थे कि ना आज तक जो ये सूबे या इंतजामी यूनिट्स की बात होती है, इसके लिए कोई कागज, कोई होमवर्क, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सब जो है वो जबानी जमा खर्च है। काबीना के देखे ना, बात ये है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा, मोहसिन नकवी साहब ने कहा, MQM के तीनों दो वफाकी वुज़रा वो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो जाए ना, प्राइम मिनिस्टर से बात करें ना, कोई फॉर्मूला जमा तो कराए, मुंह से बातें करने, सिर्फ बातें कर। अच्छा, मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छा, कि देखिए हम आपके लिए बात कर रहे हैं, हम आपके लिए वो जो है ना सिंध तकसीम हुआ था, ना सिंध तकसीम होगा। अच्छा सादिया, ये तो देखिए, ये तो वो सियासी डिबेट है जो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि जाहिर है हमने भी अभी तक, मैं कह रही हूँ ना, मैं कोई 25-30 साल से इसी पे प्रोग्राम कर करके मेरी भी जबान तक गई है कि सदारती निजाम आ रहा है, पता चल रहा है भाई सूबे बन रहे हैं। अच्छा, किसी ने सना एक बात और जी, सना हम बड़े हो गए, मतलब मेरी पैदाइश से, मेरी और आपकी पैदाइश से पहले बिल्कुल कितने तजुर्बे हम इस मुल्क में करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं अग्री करती हूँ इस बात से, मैं 100% इत्तेफाक। लेकिन सादिया एक चीज से तो आप भी इत्तेफाक कीजिएगा ना, देखें मसले का कोई ना कोई हल, मसला होता है तभी उस पर आवाज उठती है। गवर्नेंस के मसाइल देखें, सिर्फ सिंध में नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ सिंध में सब कुछ बुरा है, हाँ ये जरूर है कि बहुत कुछ बुरा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी मानदा मुल्क में जो है वो शहद की नहरें बह रही हैं और लोग हर चीज आसानी से हसूल कर रहे हैं। लेकिन आप पर जिम्मेदारी ज्यादा पड़ जाती है। 1973 के आइन के बनाने वाले बानी हैं आपकी पार्टी के जो चेयरमैन रहे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, आपके ऊपर ज्यादा बर्डन है, आप इस हुकूमत का हिस्सा, मैं नहीं कहती, देखें कागजों की बात आप कर रही है ना, 15-18 साल से माशाल्लाह आप इस सूबे को रन कर रहे हैं बाय हुक और क्रुक, हर तरीके से आपकी पेनिट्रेशन है शहर के अंदर, इंटीरियर के अंदर, इलाकों के अंदर, गली के अंदर, मॉल। लेकिन गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन है सादिया, लोगों को चीजें नहीं मैसर आ रही, इस वास्ते तो ये सवाल उठ रहा है। वरना ये चीज, इसमें अगर आप बल्दियाती इख्तियारात पूरी तरह से अपने मेयर के हवाले कर दें तो खत्म हो गया, ये क्लोज हो गया चैप्टर, ये अपनी मुंह की खुद ही खा लेंगे सारे लोग। अच्छा सना, बिल्कुल आपकी बात सही है, गवर्नेंस पे क्वेश्चन मार्क
देखें वो आपने खुद भी कहा, मतलब या तो पूरे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हो, ठीक है, और कराची में नहीं बह रही थी या सिंध में नहीं बह रही हैं, हाँ। तो सवाल उठाएं, पूरे मुल्क का प्रॉब्लम है। मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा ये बात कर चुकी हूँ जी कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा है, उसको मजबूत और मुस्तहकम, क्योंकि अवाम के मसाइल हल करने के लिए थर्ड टियर या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। इंडीड। आप ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि जो बाकी सूबे हैं, पंजाब, KPK और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद, ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि वहां बल्दियाती निजाम है? बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है, नहीं है। अच्छा, आप हम पे उंगली उठाते हैं, होगी। मैंने आपके कभी प्रोग्राम में ये नहीं कहा कि ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमने राइज किया हुआ है, ये आइडियल है, ये आइडियल है। हर चीज में तब्दीली की जा सकती है। कानून है जो असेंबली ने पास किया है, उसमें अच्छाइयां बुराइयां हो सकती हैं, उसको अमेंड किया जा सकता है। अगर लगता है MQM को कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इस वक्त राइज है वो उसमें ये कमी बेशियां, मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा कह चुकी हूँ, अली खुर्शीदी से कह चुकी हूँ आपके प्रोग्राम में कि लाए ना प्रपोजल, लाए ना डिस्कशन करें ना असेंबली में, क्यों नहीं लाते हैं? सिर्फ बाहर निकल के बातें तो बहुत सब करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि 17 साल से बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कराची का मेयर पहली दफा पीपल्स पार्टी को मिला है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारा तो दिल इतना बड़ा है कि वसीम अख्तर मुखालिफ था ना, हमारी मुखालिफ जमात है, हमारी ऑपोजिशन है जी, ठीक है, उसको हमने मेयर एक्सेप्ट किया, टेन्योर पूरा करने दिया। अब वो काम नहीं कर सके, वो डिलीवर नहीं कर सके, तो इसमें मेरा क्या कसूर? अच्छा सादिया, एक चीज मैं आपसे पूछूं, देखिए क्योंकि ये बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपके सामने रख रही हूं। नंबर्स तो ये सारी चीजों पर आया है कि MQM के पास सिंध के अंदर नंबर नहीं है, वो करारदाद ले आए, वो कुछ भी कर लें, आपका नंबर असेंबली के अंदर जाहिर है एक लार्ज नंबर है और उसको जाहिर है वो डिनाइल नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन पावर कॉरिडोर्स में जब ये बात हो रही है, जहां से ये बातें निकल रही हैं, जब ये हर जुबान पर आ रही हैं, तो इसका मकसद है कि एट द एंड ऑफ द डे ये होना है। इसमें क्लैरिटी बहुत हद तक चीजों की लोगों को नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस पर मानेगी? देखें, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो यकीनी तौर पर, जो आप थर्ड ईयर गवर्नमेंट की बात कर रही हैं आर्टिकल 140A के हवाले से, उसमें कुछ मजीद जिसे कैसे तशरीह या उसको मजीद डिफाइन करने के ऊपर बात जरूर कर रहे हैं। लेकिन क्या आप नहीं समझती कि ऐसे हालात बन गए अगर कि पावर कॉरिडोर्स और ये सारी मानदा जमातें एक ही हम आवाज हो जाती हैं, तो फिर आपको भी मानना ही पड़ जाएगा ना इंतजामी यूनिट्स का मामला? फिर क्या करेंगे आप? देखें, आपने जैसे खुद कहा, आवाजें तो बहुत उठती हैं। जो पिछले डिक्टेटर थे जिनकी गोद में ये बैठे रहे और कराची को विफाक चलाता था उस वक्त, परवेज मुशर्रफ का दौर आपको याद है ना? जी मुझे याद। वो कहते हैं कि वो MQM का सबसे गोल्डन एरा था, MQM के इख्तिदार का वो गोल्डन एरा था। तो बात ये है कि ये कोशिशें होती रही हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। लेकिन जहां तक अगर आप बात कर रही हैं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी सिंध की तकसीम या यूनिट्स के बनाने पर जो स्टैब्लिशमेंट है या कोई प्रेशर आएगा तो उससे वो एग्री कर जाएंगे। मैं इस बात को वाज़े तौर पे आपको कहूंगी कि आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा ये बात कहते हैं कि हम तारीख में जिंदा रहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा तारीख में जिंदा रहती है। हम इख्तिदार के लिए, देखिए इख्तिदार के लिए अगर पीपल्स पार्टी सिर्फ इख्तिदार के लिए वो होती ना, तो फिर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो तख्तेदार पे नहीं लटकते। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पता था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन वो पाकिस्तान में जमहूरियत की खातिर। अच्छा एक चीज देखें, मैं आप अभी मेरे साथ बराह रास्त हैं और ज़ाहिर लोग टेलीविजन जब देखते हैं और बाद में जब सोशल मीडिया पर ये सारी कॉन्वर्सेशन जाती है तो लोग फिर ये सवाल जरूर करते हैं कमेंट्स में
कि पूछना चाहिए सिंध हुकूमत से, आपके ऊपर इस वक्त बड़ी भारी जिम्मेदारी, मैं बार बार कह रही हूँ, एक बच्चे का इस शहर के अंदर कत्ल हुआ है, उसके कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। हमें पुलिस डिपार्टमेंट पर एतमाद था, है और आइंदा भी हम रखना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें कि उस पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी खुद पूरी, जिसे कहते हैं, नैया डुबो के रखी हुई है, खुद अपना मुंह काला करवाया है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को तहोबाला करके। सिंध सरकार के जो मामलात हैं, डिपार्टमेंट को चलाने के लिए आपके पास इंटीरियर की मिनिस्ट्री है। मैडम, एक बच्चे के कातिल, उसके वालिदैन रुस्वा हो रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं, सड़कों पर एहतजाज हो रहा है, क्या फिर लॉनेस नहीं है? ये गवर्नेंस ही तो है। अगर ये नहीं होगी तो फिर तो मामलात खराब होंगे। इस केस में आप लोगों ने क्या किया अब तक? देखिए, आप अली रजा के केस की बात कर रही हैं। बिल्कुल, मैं इस मामले पर आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो शुरू में इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें पेरेंट्स को भी शिकायत थी और सिविल सोसाइटी को भी शिकायत थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो दूसरी कमेटी बनाई गई है उसमें पेरेंट्स का भी एतमाद है और सोसाइटी को भी, सिविल सोसाइटी को भी एतमाद करना चाहिए। पुलिस काम करी, जरूर देर जरूर हुई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये कहा जाए कि नहीं, कुछ नहीं कर रही सिंध सरकार, जब उसमें बहुत सारी चीजों का मीडिया ने निशानदेही की है और उसको सिंध गवर्नमेंट ने ठीक भी किया है। ये नहीं कहा जा सकता कि हम सुन नहीं रहे। देखिए, ऐसी मिसालें पाकिस्तान में बहुत सारे मुकदमे हैं जिनको क्लोज एंड शट कर दिया जाता है, थोड़ा हंगामा होता है और कहानी खत्म हो जाती है। जैसे वो लाहौर में 2 बच्चियों के साथ हादसा हुआ, कहा गया वो केस, मतलब किसको क्या हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन, जी हमने पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए, बात खत्म हो गई, वो खुद मर गई लड़कियां। तो बात ये है, हम बिल्कुल ठीक है, हम पे तनकीद हो रही है, देखिए कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उस पे तनकीद। पुलिस डिपार्टमेंट ने शुरू में बिल्कुल उसमें जो है वो गफलत बरती है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही। लेकिन सादिया, एक चीज और भी ना, देखिए मुझे मैं आप सब लोगों से बड़ा एहतराम का रिश्ता है। डॉक्टर सुमैया जो कि पुलिस सर्जन हैं, जिन्होंने ज़ाहिर शाहजेब के प्रोग्राम में एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पोस्टमार्टम का पोस्टमार्टम किया, उन्होंने हर क्लॉज बाय क्लॉज चीज़ों का डिटेल्स इन्वेस्टिगेट किया। अब डॉक्टर सुमैया का कैरियर जो है वो दांव पर लगाने की बात हो रही है। एसएसपी ईस्ट के बारे में ये खबरें हैं कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को अंडरमाइन किया, चीज़ों को ख़राब किया, वो आज तक ओहदे पर है। सारे लोग कह रहे हैं कि पुलिस, मतलब आई एम रियली सॉरी, मैं नाम ले रही हूँ, लेकिन हमारे इंटीरियर मिनिस्टर तक ने कह दिया कि पुलिस सर्जन साहिबा ने जो है वो सब कुछ जाकर मीडिया को बता दिया, जबकि वो एक रोज पहले सारा कुछ तहरीर करके आईजी के हवाले कर चुकी हैं। सो क्यों हम क्वेश्चन करते हैं अपने काबिल लोगों को, डॉक्टर सुमैया जैसी शख्सियत को जो कि केपेबल है? देखिए, जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बात की, वो उनका ये कहना कि बिल्कुल ठीक है। अगर डॉक्टर सुमैया ने, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर सुमैया पर्सनली आईजीपी के पास गई थी या उन्होंने she wrote the letter to IG Sindh. हाँ, she wrote the letter. वो देखें, वो पर्सनली भी जा सकती थी ना, इतना बड़ा मामला था, वो पर्सनली भी जा सकती थी। उनका जो होम मिनिस्टर साहब का ये कहना कि उनको टीवी पे नहीं आना चाहिए था, पहले अपने डिपार्टमेंट को एतमाद में लेना चाहिए था, हेल्थ सेक्रेटरी के पास वो चली जाती कि जी ये लकूनास है, इसलिए उन्होंने ये बात की। डॉक्टर सुमैया के साथ कोई कुछ नहीं कर रहा, ना उनका कैरियर एट स्टेक है। बाकी जहां तक देखें, पुलिस में बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया गया है, बहुत सारे लोग यार आपको भी पता है, एक एसएचओ को हटाने में और एक आईओ को ट्रांसफर करने में और एक एसएसपी को हटाने में बहुत फर्क होता है। यू बेटर नो। देखें नहीं सना, देखें इस वक्त अगर मैं और आप जितना इस केस पे हम बात करते जा रहे हैं ना, उतनी इन्वेस्टिगेशन में मुझे लगता है पर्सनली ठीक हो गया कि उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वी शुड वेट कि उसकी रिपोर्ट आए और फिर उसमें जो लोग भी, ये मैं आपको इंश्योर कर रही हूँ, जो लोग भी, चाहे वो पुलिस से हो, किसी हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, जो भी इदारे या लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे और उनका सिंध गवर्नमेंट से कोई भी ताल्लुक वास्ता होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई। सादिया जावेद साहिबा, मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रही थी, गवर्नेंस के मसाइल बहरहाल मौजूद हैं।
हैं। आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि बेवक्त की बातें की जाएं, बजाय इसके कि कंसेंसस डेवलप किया जाए चीज़ों को बेहतर करने के लिए, ना कि नए इंतज़ामी यूनिट्स जैसी बातें करके लोगों को मज़ीद डिवाइड करने की बात की जाए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, और जाहिर है मैंने कहा है कि जब तक मीर रज़ा के कातिल नहीं मिल जाते मैं तो जब तक प्रोग्राम करती ही रहूंगी, चाहे कैसे भी करना पड़े। राइट आफ्टर दिस ब्रेक मीर रज़ा के बारे में ही कुछ मज़ीद मालूमात। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मीर रज़ा के कातिलों का ताहाल कुछ अता पता तो नहीं है, लेकिन जाहिर है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक जानिब जारी और सारी है, और मेरी कोशिश है कि ज़ाहिर जो हुकूमती लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू हो, जो मीर रज़ा की फ़ैमिली है, उनके वकील हैं, उनसे भी बात होती रहे, और साथ साथ ऐसे लोगों से भी ज़रूर बात की जाए जो इस तरह के क्राइम्स को माजी में देख चुके हैं, या इसकी कहीं नज़ीर मिलती है, या एज एन क्राइम रिपोर्टर्स उन्होंने कहीं सर्व किया है और वो इस क्राइम को किस नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं बाबर सलीम, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, और इस तरह के सारे मामलात पर बड़ी अपनी अलग से तफ्तीश जो है या अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी जमा करते रहते हैं, और आप उनको देख रहे हैं मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पर भी। मेरे साथ इस वक्त हैं बाबर सलीम। अस्सलाम वालेकुम बाबर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बाबर ये फरमाइएगा कि आप तो क्राइम एज एन क्राइम रिपोर्टर इस तरह के और दीगर, और मेरा ख्याल है मुझे नहीं पता कि ये पहला है इस तरह का केस या इससे पहले भी इस तरह के केसेस आपने देखे। ये पुलिस की नाअहली तो रोज़े रोशन की तरह सब पर आया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहली तफ्तीशी टीम थी, ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि रज़ा का कातिल आपकी मालूमात में जो आप चीज़ें इन्वेस्टिगेट या जो आप टाइमलाइन सेट कर रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ, उसमें आपको क्या लगता है कोई करीबी साथी है, कोई दोस्त है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी पहले पुलिस में था या नहीं था, या आपको लगता है किसी बाकायदा तौर पर गिरोह का कारनामा है जिसके कारिंदों ने रज़ा को इतनी बर्बरियत के साथ कत्ल किया है? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, ऑब्वियसली पुलिस चूंकि बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, उनके पास बेतहाशा वसाइल हैं जिनको इस्तेमाल नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम अपने तरीके जो कुछ कर रहे हैं उसमें हम 2-3 मुख्तलिफ प्लॉट्स हमने अपने पास क्रिएट किए हैं कि इनको यहाँ नहीं मारा गया, कहीं और मारा गया, और या अगर यहाँ मारा गया तो फिर क्या सूरत हाल रही होगी। इसके लिए हमने मुख्तलिफ CCTV कैमरास जो इलाके में मुख्तलिफ गलियों में, सड़कों पे लगे हैं, स्कूलों में, मसाजिद में, उनका डाटा कलेक्ट किया है, और इसके साथ टेक्निकल साइड पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉल डाटा रिकॉर्ड्स हैं उनको जांचा जा सके। जो करीबी लोग हैं मीर रज़ा के, उनके बिजनेस पार्टनर है अहमद, उनके भाई हैं अब्दुल्ला, इसके साथ कुछ नाम ऐसे हैं जो शायद इस वक्त लेना मुनासिब नहीं है, उस पर काम चल रहा है। तो हम इन 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और हमें ये बात तो अब श्योर है, जो कुछ हमने अब तक अपनी आंखों से देखा है फुटेजेस में, जो कुछ हमने वहाँ लोगों से बात करके जांचा है। 28 को आखिरी दफ़ा जाते हुए दिखे थे मीर रज़ा एक जो रेंटा कार है उसकी दुकान के कैमरे में, उसके बाद नहीं पता कि क्या हुआ। तो हम अब तक जो 28 और 29 की मुख्तलिफ कैमरास की फुटेजेस हैं उनको देखकर ये तो समझ गए हैं कि 28 को उस मकाम पे जहां से मीर रज़ा की डेड बॉडी मिली थी वहां कुछ नहीं हुआ। 28 का दिन बड़ा पुरसुकून है, फुटेजेस में हम देख रहे हैं, रूटीन लाइफ है, लेकिन 29 को हम ये देखते हैं कि अचानक एक्टिविटी है, यानी कि लाश मिल गई है, माली भी एक्टिव हो गए हैं, पुलिस भी एक्टिव हो गई है, और उससे एक दिन पहले सेम टाइमिंग्स में हम देखते हैं उस नर्सरी के इतराफ में जो फुटेजेस हमें हासिल हुई हैं या जिन पे हम काम कर रहे हैं, उसमें बड़ा ये क्लियर है कि उस स्पॉट पे जहां से लाश मिली है वहां तक मालियों का एक्सेस था, वो वहां गए हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटी की है, पौधों को पानी दिया है, कोई उनको लाश वहां दिखाई नहीं दे रही। तो ये तो तय हो गया कि यहाँ पे जहां तक गए हैं मीर रज़ा, उस जगह पे जहां से लाश मिली है वहां उन्हें नहीं मारा गया, इनको उठा के कहीं लेके गए हैं, किसी जगह पे उन्हें टॉर्चर किया गया है। और ये भी जो एरिया होगा ये 2 से 3 किलोमीटर का रेडियस होगा, क्योंकि जिस हालत में लाके उन्हें वापस फेंका गया है, इस हालत में कराची में गाड़ी या मोटरसाइकिल पे किसी को लेके नहीं घूमा जा सकता। एब्सोल्युटली राइट। बाबर एक चीज और है ना, देखें ये बात तो मैं पहले दिन से यही कह रही थी जब ये सारा मामला हुआ और हम इसको कवर कर रहे थे, इस पर बात कर रहे थे कि ये क्राइम सीन नहीं है, ये तो अंधे को भी नजर आ रहा था, लेकिन शायद जिनको नजर आना चाहिए उनको अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये फरमाइएगा, मैं तकरार से सवाल कर रही हूँ,
क्या अभी तक ये बात आप इस चीज को असेस कर चुके हैं, एनालाइज किया आपने कि क्या ये किसी फर्द वाहिद का अमल है? क्योंकि अभी तक जो चीजें, जो निशानदेही हुई है चीजों की, पहले तो कत्ल ही नहीं निशानदेही हो रही थी ना, बड़ी मुश्किल से तो हम वहां तक पहुंचे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें एक से ज्यादा लोगों के मुलव्वस होने का शुबा है आपको, या आपको लगता है किसी एक ही शख्स की कार्रवाई है? क्योंकि बहुत डिटेल्ड कार्रवाई है ना, ऐसा नहीं है कि उसको बुलेट्स मार दी और उसको फायर करके मार दिया गया, मतलब इन डिटेल काम हुआ है और बहुत ही टेक्निकल तरीके से उसको मारा भी गया है। तो कोई एक आदमी है, गिरोह लगता है आपको? देखिए, दैट्स वेरी ऑब्वियस। जिसने भी किया है ना, दे आर वेरी एक्सपर्ट। उनको पता है कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि बाकायदा पूरे इलाके में रैकी की जा रही थी। इसमें जिन्होंने मारा है वो और लोग हैं, जो लोग रैकी करते रहे हैं इलाके की वो और लोग हैं। जिन्होंने रैकी की है उन्होंने मीर रजा के आगे पीछे अपने लोग, मतलब वो खुद मौजूद रहे हैं और उन्होंने ये जांचा है कि मीर रजा अकेला है, बिल्कुल तन्हा आ रहा है, कोई और नहीं आ रहा। अच्छा, ये हम क्यों कहते हैं? ये हम इसलिए कहते हैं कि मीर रजा ने गाड़ी बहुत पहले रुकवा ली थी अपने क्लाउड किचन से कुछ आगे जाके। एक पुलिस एक चौकी बनी हुई है सिक्योरिटी की उस एरिया में, और उसके बाद वो बाय वॉक गए हैं उस मकाम तक जहां तक आखिरी कैमरा में नजर आ रहे हैं। तो ये महसूस हो रहा है कि उन्हें ये कहा गया था कि तुमने अकेले आना है, तुम्हारे साथ कोई होना नहीं चाहिए। और वो बच्चा फिर अकेला गया है। जो बच्चा असलहे पे नफरत करता है उसने वेपन लिया है, तो ये इस बात का इशारा है कि उसको खतरा था। वो जानता था मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां मुझे अपनी जान की हिफाजत के लिए कुछ असलहा ले जाना पड़ेगा। वो वेपन लेके गया है। वहां जाने के बाद कोई और पार्टी है, कोई और टीम है इसी गैंग की जिसने उनको गाड़ी में डाला है और वो ले गए साथ। उसके बाद उस 2-3 किलोमीटर के रेडियस में कहाँ लेके गए हैं ये ढूंढना पुलिस का काम है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह में कामयाब कर दें। लेकिन महसूस ये होता है कि उसके बाद पूरी रात उन पर टॉर्चर हुआ है। जिस तरीके का टॉर्चर किया गया है ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड काम है। देखें, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो इतनी खौफनाक है। एनेस्थेसिया को वेन्स में देना ये कोई आम बात नहीं है, और कोई आम रूटीन क्रिमिनल इस बात को समझता भी नहीं है। ये जिसने भी किया है वो जानता है कि क्या काम कैसे करना है। अच्छा बाबर, आप जब ये बात कर रहे हैं ना तो मेरे जहन में बड़ी अच्छी बात किया आपने। मैं ज़रा उस तरह टर्मिनोलॉजी में शायद नहीं बात कर पा रही थी, लेकिन मुझे ये बताइएगा बाबर कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत ऑर्गेनाइज क्राइम किया गया है, इसका मकसद है वो जो भी शख्स था उसको ये तो पता था कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो फॉरेंसिक टेस्ट होंगे, और जिस तरह से तेजाब डालकर उसके हाथों को मुकम्मल तौर पर मस्क कर दिया गया, उसकी शक्ल बिल्कुल बिगाड़ दी गई बच्चे की। मुझे कह लेने दीजिए, बड़ी सेंसिटिवली मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या ये किसी आपको ऐसे डिपार्टमेंट, जो कि ज़ाहिर बहुत इन्वेस्टिगेटिव भी रहते हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग केमिकल के एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग लॉज के एक्सपर्ट होते हैं, सो आपको लगता है कुछ उस जहन के लोग या गिरोह के लोग हैं जिन्होंने ये अमल इख्तियार किया है? बाबर, देखें, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते अभी, क्योंकि हम ब्लैंक हैं। हम किसी को मूरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। देखिए, जो एनेस्थीसिया है उसको ऑपरेशन थिएटर्स में, हॉस्पिटल्स में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके लिए अलग डॉक्टर है, ये एक अलग स्पेशलिटी है। उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कि अगला जो बंदा है जिसको एनेस्थीसिया दिया जा रहा है वो कितनी देर तक बेहोश रहे और फिर होश में आ जाए। एनेस्थीसिया की ज्यादा मिकदार देने से मौत वाकई हो जाती है। इस बंदे ने, जिस ग्रुप ने ये काम किया है, उसने एनेस्थीसिया की वो क्वांटिटी उसको पता है कि किस लिमिट में देना है कि मीर रजा साकित तो हो जाए लेकिन वो मरे नहीं। और उस दौरान हमें ये लग रहा है कि किसी ने भड़ास निकाली है। ये रूटीन मर्डर नहीं है, उनके साथ अपना गुस्सा निकाला जा रहा है, या फिर अगेन इनके वालिद साहब ने एक बात की कि हमें थ्रेट है, ये मैंने सुना सोशल मीडिया पे, या फिर ये है कि फैमिली को इस तरह का मैसेज दो इस बच्चे की लाश के जरिए कि फैमिली खौफजदा रहे। तो अब ये सूरत हाल इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि पुलिस ने जो उनकी ड्यूटी है वो उन्होंने की नहीं है। जिस तरह सीसीटीवी फुटेजेस को कलेक्ट करना था और उनको एनालाइज करना था, जियो फेंसिंग के जरिए नैरो डाउन करने थे नंबर्स, और फिर वो डाटा कलेक्ट करना था जो कि सस्पिशियस हो सकता है, वो सब इनिशियल स्टेजेस पे नहीं किया गया। अब वक्त इतना गुजर चुका है कि सीसीटीवी कैमरास जो इतराफ में लगे हैं वो 6-7 दिन का उनका बैकअप है, वो ओवरराइट हो गई हैं फुटेजेस, अब नहीं मिल रही हैं।
हमने जितना डाटा कलेक्ट किया था, हम कोशिश करेंगे कि कल या परसों इंशाल्लाह एक और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी हम आप लोगों के सामने रखेंगे और आप देखेंगे उसमें। अच्छा बाबर, ये बताएं ना फिर कि शवाहिद सामने लाए जा सकते थे इनिशियल स्टेजेस पे, जो अब हम लाएंगे। पुलिस को लाने चाहिए थे, पुलिस चले उसके लिए तो ज़ाहिर है हम मुंतज़िर रहेंगे। लेकिन बाबर, ये भी फिर सवाल उभर रहा है ना, देखें हम सब लोग इस वक्त सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिस्टम हमें क्या डिलीवर कर रहा है। क्या आपको लगता है कि मेरे मुंह में खाक इस लफ्ज़ को कहते हुए कि मीर रज़ा के कातिल नहीं पकड़े जाएंगे और ये केस जो है दाखिले दफ्तर हो जाएगा, रद्दी की टोकरी बन जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और फिर होती ही रहेगी, लेकिन जो असल लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाएंगे? क्या ये आपको फील आ रहा है इस केस में? क्योंकि माजी में बहुत सारे ऐसे केसेस रहे। तो वालिदैन की जानिब से इत्मीनान का इजहार कर दिया गया है पुलिस की नई टीम पर, नई कमेटी पर जो इस पे काम कर रही है जी। और सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि फैमिली मुतमईन रहे इन्वेस्टिगेशन से। हमारे यहाँ कई केसेस ऐसे हैं जो कि दफा को जिंदा रखता है, यानी जो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन है वो तो जिंदा रहता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की फाइल बंद हो जाती है। हम कहते हैं केस को ए क्लास कर दिया गया, यानी केस में जो कुछ मौजूद है वो ठीक है, लेकिन कोई मिल नहीं रहा, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन अभी रोक दी है। कोई मिल जाएगा तो काम आगे बढ़ा लेंगे। ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस केस में कि अगर पुलिस के पास कुछ नहीं आया, जो कि अभी तक हमें दिख रहा है कि वो भी ब्लैंक ही है, तो फिर लगता है कि शायद ये ए क्लास हो जाए जो जिस तरीके से काम चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस पूरे मामले में जो ऑफिसर्स जिनकी नेग्लिजेंस है उनको सीट्स पर अभी तक बिठाए रखना, एसएसपी ईस्ट जुबैर नजीर, आपने अभी तक किसकी सिफारिश है? ये किस मतलब इतना कौन सा बड़ा छक्का मार रखा है इन्होंने? अच्छा, लेकिन ये बताएं कि मुझे मेरी इत्तला थी आखिरी के एसएचओ को शायद मुअत्तल किया गया था, वो दोबारा कुर्सी पर आ गए हैं और आप एसएसपी ईस्ट की भी बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि किसी हद तक एक्टिव हुई है सिंध हुकूमत? बाबर नहीं एसएचओ गुलिस्तान, अच्छा मैं आपको अगर इनसाइड स्टोरी बताऊं तो वो ये है प्लीज कि जो हमारी इत्तलात हैं, जो एसएचओ गुलिस्तान जो और उसको रिवर्ट सस्पेंड कर दिया कामरान को। इनिशियली ये सारा काम जो है वो एसएसपी ईस्ट की सुपरविजन में हो रहा था और एसएसपी ईस्ट ने एसएचओ गुलिस्तान जौहर को ये डायरेक्शंस दे दी थी उस वक्त कि जी आपने हीरोइन ढूंढना है, आपने पिस्टल ढूंढना है, और एक दूसरी टीम थी जो दीगर चीजों पे काम कर रही थी। आप अपने सबऑर्डिनेट्स को अगर पहले ही खुदकशी डिक्लेयर करके लगा देंगे इस काम पे कि जी आपने ये डाटा कलेक्ट करना है, तो वो क्या करेगा? बाबर, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इस अहम तरीन वाकई के हवाले से अपनी इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ शेयर की। वेल, थैंक यू वेरी मच अगेन। प्रोग्राम आपके सामने है। मुझे नहीं पता कि सिस्टम कोलैप्स कितनी तेज़ी से कर रहा है और सिस्टम को स्ट्रेंथनाइज करने के लिए वो कौन से लोग होंगे, वो कौन से हाथ होंगे, वो कौन से अजहान होंगे, वो कौन सी तरमीम होंगी, वो कौन से नए कवानीन होंगे जो हमें और मीर रज़ा जैसे और दीगर बहुत सारे घर के बच्चों को, बच्चियों को, इस पूरे सूबे को, पूरे मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेंगे। शायद हम भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं और आपको भी इंतज़ार ही करना होगा। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।